ઉપસ્થિત દરેક મહાનુભાવોને દીપેન ઉપાધ્યાયના નમસ્કાર. આપણે કાર્યક્રમ શરૂ કરીએ છીએ અને જે રીતે આપણી ભારતીય પરંપરા છે કે કોઈ પણ સારા કાર્ય શરૂ કરતા પહેલા આપણે પરમેશ્વરના આશીર્વાદ લઈએ છીએ અને દીપ પ્રાગટ્યનો એક પ્રતીક છે. તો હું અનુરોધ કરીશ ડૉક્ટર અમીબેન ઉપાધ્યાય, ડૉક્ટર નિર્જાબેન ગુપ્તા, ભારત મંથનના સંયોજક અલ્કેશભાઈ પટેલ તથા સહસંયોજક ડૉક્ટર શિરીષભાઈ કાશીકરને મંચ ઉપર આવવા માટે અને દીપ પ્રાગટ્ય કરવા માટે. હવે કાર્યક્રમ આગળ વધીએ ત્યારે હું સંયોજક શ્રી અલ્કેશભાઈ પટેલને અનુરોધ કરીશ કે તે અહીંયા મંચ ઉપર મારી જગ્યાએ આવે સ્થાન ઉપર અને સ્વાગત ઉદ્બોધન કરે. આપણી આ ભારતીય પરંપરામાં દીવો જે છે તે એક સારું પ્રતીક સમાન છે. જે આપણે સમજીએ તો આપણે ભારત મંથન કાર્યક્રમ કરીએ છીએ તો મારા તરફથી પણ થોડીક વાતો હું શેર કરી લઉં. દીવો જે છે તે જ્ઞાનનો પ્રતીક છે અને ઘી એ શક્તિનું પ્રતીક છે. જે અજ્ઞાન રૂપી અંધકાર છે તે જ્ઞાન રૂપી દીવાથી જ દૂર થાય છે. અને આપણી ભારતીય પરંપરાની અંદર આવી ઘણી ખરી જ્ઞાનવર્ધક વાતો વર્ષોથી ચાલતી આવી છે, જે આપણને ક્યાંક ને ક્યાંક આપણા અજ્ઞાનને દૂર કરવા માટે સિમ્બોલિક રહી છે. હવે હું અલ્કેશભાઈને અનુરોધ કરીશ. સૌને વંદન. મારી ભૂમિકા માત્ર અત્યારે બધાનું સ્વાગત કરવાની છે. આ જગ્યાએ આપણે જ્યાં બેઠા છીએ, આંબેડકર યુનિવર્સિટી, ઓપન યુનિવર્સિટી, એ યુનિવર્સિટીના વાઇસ ચાન્સેલર પ્રોફેસર ડૉક્ટર અભિબેનનું સ્વાગત કરું છું. ડૉક્ટર નિર્જાબેન, જેમનું આજે આપણે ભારત મંથન સન્માન કરીએ છીએ, એમનું પણ સ્વાગત કરું છું. ડૉક્ટર કાશીકર NIMCGના ડિરેક્ટર, એમનું સ્વાગત કરું છું. આજે બહુ જ મોટો આનંદની વાત એ છે મારા માટે કે જેમને સતત વાંચતા રહ્યા છે, જેમનાથી પ્રેરણા મેળવતા રહ્યા છે, એવા નગેન્દ્ર વિજય સાહેબ આવ્યા છે. એ ઘણા મોટા આનંદની વાત છે. કિશોરભાઈ પણ આ બધાનું સ્વાગત કરું છું. ભારત મંથન મોટાભાગે આપણે જાણીએ છીએ, જેટલા અહીં હાજર છે, જે લોકો લાઈવ જોઈ રહ્યા છે, એમાંથી મોટાભાગના જાણીએ છીએ કે પુસ્તક લેખન, પુસ્તક પ્રસાર અને સતત પ્રવૃત્તિ ચાલુ જ હોય છે જ્યારે હોય ત્યારે. પણ મોટે ભાગે એવું બનતું હોય છે કે અમુક પ્રકારના, અમુક જોનરના પુસ્તકો વિશે જ મીડિયામાં જોવા મળે,
એના રિવ્યૂઝ પણ એવા જ પ્રકારના પુસ્તકોના થાય. પણ લગભગ જે રાષ્ટ્રવાદની વાત કરતા હોય, સનાતનની વાત કરતા હોય, ભારતની એકતાની વાત કરતા હોય, એવા પુસ્તકોની મોટાભાગે ઉપેક્ષા થતી હોય હું ઘણા વર્ષોથી જોઉં છું. કદાચ નોંધ લે તો એવી ટ્વિસ્ટ કરીને નોંધ લે કે વાચકોને કે શ્રોતાઓને એમ થાય કે આમાં નહીં વાંચવા જેવું હોય, આ પુસ્તક નહીં વાંચવા જેવું હોય, આનાથી દૂર રહો, હવે નથી ખરીદવું કે નથી વાંચવું. એટલે છેલ્લા થોડા વર્ષથી અલગ અલગ રાજ્યમાં આવા પ્રકારના લિટરેચર ફેસ્ટિવલ શરૂ થયા જ્યાં રાષ્ટ્રવાદને લગતા પુસ્તકોની ચર્ચા થતી, પણ ગુજરાતમાં આવું ક્યાંય પ્લેટફોર્મ નહોતું. અમદાવાદમાં એક મોટો ફેસ્ટિવલ થાય છે, પણ આ પ્રકારના પુસ્તકોની તો ત્યાં પણ ઉપેક્ષા થઈ રહેતી. એટલે ગયા વર્ષે લગભગ ઓક્ટોબર નવેમ્બરમાં મને વિચાર આવ્યો કે મારી ક્ષમતા શક્તિ જે કંઈ થોડું ઘણું છે હું પોતે જ પ્રયત્ન કરું. અને જેવો પ્રયત્ન શરૂ કર્યો બધા જ જોડાતા ગયા, બધા બહુ જ ખુશીથી જોડાયા અને ગયા વર્ષે અમે કરી શક્યા એક બહુ સરસ કાર્યક્રમ એએમએમાં. આ વર્ષે પણ એવો જ વિચાર આવ્યો, એ જ આગળ વધારી પ્રક્રિયા, અને આજે એનો આ બીજી એડિશન ભારત મંથન 2 કરી રહ્યા છીએ. આજે આમ તો જે આખું સત્ર ચાલશે એ દરમિયાન અને એ ઉપરાંત હમણાં કાશીકરજી આખા દિવસની જે થોડી વિગત આપશે પ્રક્રિયાની, એમાં પુસ્તકોની વાત કરશે. પણ હું તમને ગયા વર્ષના જે 4 પુસ્તકો એક સ્થળે રિકોલ કરાવી દઉં બધાને, અહીંયા જે છે એમને, અને લાઈવ જે લોકો જોઈ રહ્યા છે. એક તો લાઈવ બધા જે જોઈ રહ્યા છે એમનું પણ સ્વાગત કરું છું, એમને પણ વંદન કરું છું. ગયા વર્ષે આપણે વીર સાવરકરની આત્મકથાનો એક ચર્ચા લીધી હતી, એક બ્રેકિંગ ઇન્ડિયાની વિશે ચર્ચા કરી હતી, એક આવરણ વિશે પણ ચર્ચા કરી હતી, અને કાશ્મીરના પંડિતો વિસ્થાપિતો વિશે જે અંગ્રેજી પુસ્તક લખાયું હતું એનો ગુજરાતી અનુવાદ આપણી ગુજરાતી એક છોકરીએ કર્યો હતો, એના પણ ચર્ચા લીધી હતી. એ પોતે ભાવનગરથી અહીંયા આવી હતી અને એણે એના વિશે કરી હતી વાતચીત. આજે જે છે બીજા આપણી એડિશનમાં, બીજા હપ્તામાં, એમાં આપણે આ 4 પુસ્તકો લઈએ છીએ. એક તો અનબ્રેકિંગ ઇન્ડિયા, જે કલમ 370 અને CAA ને કારણે જે પેલું ભારત તોડોની જે વાત હતી, આ ભારત જોડવાની જે વાત થઈ, સરકારે કરી એના પ્રયત્નો, એનો આખો એક ચિતાર છે એમાં. એક પુસ્તક છે એન એન્ટાયરલી ન્યૂ હિસ્ટ્રી ઓફ ઇન્ડિયા, ફ્રાન્સવા ગોતીએ, ફ્રેન્ચ પત્રકાર જે અહીંયા વર્ષોથી અહીંયા સ્થાયી થયા છે, પુણે અને પોંડિચેરીમાં રહે છે, ક્યારેક દિલ્હી પણ હોય છે. એમને પણ લાગ્યું, જે આપણે બધા ઘણા બધા જે અનુભવતા હતા, કે સાચો ઇતિહાસ ક્યાંક ને ક્યાંક દબાવી દેવામાં આવ્યો છે, અને જે આપણે બધું ભણીએ છીએ એ જ બધું આપણને, એટલે એમણે એ વાતને બહાર લાવ્યા છે એન્ટાયરલી ન્યૂ હિસ્ટ્રી ઓફ ઇન્ડિયામાં. ત્રીજું પુસ્તક છે કિશોરભાઈનું, આંબેડકર, ડૉક્ટર આંબેડકર, બાબા સાહેબ આંબેડકર. એમની તો ઘણી ભૂમિકા રહી છે, આપણે જાણીએ છીએ, એમના વિશે જાણીએ છીએ, પણ એમના લખાણ વિશે મને એવું લાગે છે કે હજુ, અથવા તો એમના જે રાષ્ટ્રવાદી વિચારો હતા, ધર્મ વિશેના વિચારો હતા, એ બધા સુધી પહોંચ્યા નથી. અને આ વખતે હમણાં જ 2-3 મહિના પહેલા જે એમનું કિશોરભાઈનું પુસ્તક પ્રકાશિત થયું, અને મને લાગ્યું કે તાજું છે અને એ આ વખતે લેવું જ જોઈએ, તો એના વિશે પણ એક ચર્ચા કરીએ. અને એક સેફ્રોન સ્વોર્ડ છે, માનવસિંહ સિંહા કરીને છે. એ એમણે ખૂબ સંશોધન કરીને દેશમાં ફરીને જે સ્વતંત્રતા પહેલા અને એના પણ ગાળા પહેલા જે લોકો આપણે રાષ્ટ્રવાદી માટે થઈને જે લડ્યા હતા, જેમણે સશસ્ત્ર સંઘર્ષ કર્યો હતો આક્રાંતાઓ સામે, એ લોકોની સ્ટોરીઝ શોધી લાવ્યા છે બધા. 52 સ્ટોરી એવી મહિલાઓની છે, એવા લોકોની છે, અને એના વિશેનું એક ડોક્યુમેન્ટેશન કર્યું છે. એની પણ આજે આપણે વાતચીત કરીશું. એટલે બસ મારે આનાથી વધારે અત્યારે કશું કહેવું નથી. અત્યારે આપણે 3-3 મિનિટની આપણે ગયા વર્ષે જે કાર્યક્રમ થયો હતો એની એક લાઈવ, એની એક પેલી વિડીયો ક્લિપ જોઈ લઈએ અને પછી આપણે કાર્યક્રમ આગળ વધારીએ.
હવે કાર્યક્રમ આગળ વધતા હું સહસંયોજક શ્રી ડૉક્ટર કાશીકર સાહેબને વિનંતી કરીશ કે આજના કાર્યક્રમની રૂપરેખા આપે, સાથે સાથે ડૉક્ટર અમીબેન અને ડૉક્ટર નિર્જાબેનનો ટૂંકો પરિચય પણ આપણને આપે. नमस्कार। वैसे हम गुजरात में हैं और बात गुजराती में होनी चाहिए, पर इस कार्यक्रम में हमारे साथ बहुत सारे लोग जो हैं अलग अलग राज्यों से भी जुड़े हैं और पूरे दिन का कार्यक्रम जो है वो हिंदी में चलने वाला है, इसलिए मैं अपनी बात हिंदी में रखूंगा। मंचस्थ वाइस चांसलर महोदया डॉक्टर अमीबेन, विदुषी डॉक्टर निर्जा जी, संयोजक अल्केश भाई, परम आदरणीय नगेंद्र विजय जी, किशोर भाई, मुकुंद भाई और हमारे आमंत्रण को मान देकर यहाँ पधारे सभी हमारे परिवारजन, मित्र और ऑनलाइन जो मित्र परिवारजन हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी का भारत मंथन में स्वागत है। आज एक साथ तीन पवित्र अवसर हैं। गीता जयंती है आज राष्ट्रपुरुष अटल जी का जन्मदिन है और आज ईसाई भाई बहनों का पवित्र त्योहार क्रिसमस भी है। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का सौभाग्य मुझे आज प्राप्त हुआ, इसका आनंद है। पिछले वर्ष हमने कार्यक्रम किया था, वो एमए में किया था, जैसे अभी अल्केश भाई ने बताया, पर इस बार न्यू नॉर्मल के चलते हुए हमने इसे ब्लेंडेड मोड में आयोजित किया है। यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के सभाखंड में आमंत्रित मेहमानों के अलावा हमारे मित्र परिजन इस कार्यक्रम को भारत मंथन के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और एनएमसीजे के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर से लाइव देख रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम की रूपरेखा कुछ इस प्रकार है। इस प्रथम सत्र में हम दो महत्वपूर्ण बातें करेंगे। हमारे बीच उपस्थित विदुषी डॉक्टर निर्जा गुप्ता जी का हम भारत मंथन सम्मान करेंगे एवं हमारे संयोजक श्री अल्केश भाई पटेल द्वारा संपादित पत्रकारिता पुस्तक पत्रकारत्व विश्वसनीयतानो પડકાર का लोकार्पण भी उपस्थितों के हाथों होगा। बाद में डॉक्टर निर्जा जी अपना वक्तव्य देंगी और अध्यक्षीय प्रवचन वाइस चांसलर महोदया डॉक्टर अमी उपाध्याय करेंगी। पहला सत्र 11 बजे हम शुरू करने का आयोजन हमने किया है, जिसमें एन एंटायरली न्यू हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक श्री फ्रांकोis गोथिए हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ेंगे और इस कार्यक्रम का, इस सत्र का मॉडरेशन जो है वो हमारे सीनियर पत्रकार मित्र कुलदीप लहरू करेंगे। दूसरा सत्र 12 बजे से 1 बजे तक का रहेगा, जिसमें श्री संजय दीक्षित द्वारा लिखे गए पुस्तक अनब्रेकिंग इंडिया, डिसीजन ऑन आर्टिकल 370 एंड द सीए पर लेखक अपनी बात रखेंगे और हम उसके ऊपर चर्चा विमर्श भी करेंगे। इस सत्र का अध्यक्ष बनने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। दोपहर 1 से 2 बजे तक भोजन का विराम रहेगा, जिसमें यहाँ उपस्थित सभी मेहमान गर्मा गर्म स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेंगे और जो लोग अपने अपने घर पर बैठकर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो अपने अपने घर पर गर्मा गर्म भोजन लें। दोपहर 2 बजे हमने एक विशेष सत्र का आयोजन किया है, जिसमें राष्ट्रवाद के प्रखर पुरस्कर्ता श्री सीताराम जी गोयल पर इंडस यूनिवर्सिटी के इंडिक स्टडी सेंटर के पूर्व प्राध्यापक श्री पंकज सक्सेना बात रखेंगे। दोपहर 2:30 से 3:30 के सत्र में श्री किशोर भाई मकवाणा लिखित पुस्तक डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर राष्ट्र निर्माण में योगदान पर लेखक श्री किशोर भाई अपनी बात रखेंगे। इस सत्र के अध्यक्ष श्री पत्रकार श्री देवेंद्र कुमार सोलंकी रहेंगे। दोपहर 3:30 से 4 बजे का समय चाय की चुस्की लेने का है। चौथा सत्र 4 से 5 बजे तक का रहेगा, जिसमें श्रीमती मानोशी सिन्हा अपने पुस्तक सेफ्रन स्पॉट्स पर विमर्श करेगी। इस सत्र के अध्यक्ष रहेंगे सीनियर पत्रकार श्री जपन पाठक। अंतिम सत्र समापन का रहेगा, जिसमें हमने श्री नागेश भंडारी जी को आमंत्रित किया है, जो कि इंडस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, पर अभी उनका मैसेज आया है कि वो कहीं ट्रैवलिंग में है, तो वो कोशिश करेंगे कि वो समय पर पहुंच सके। और कार्यक्रम के अंत में आभार विधि हमारे मित्र श्री मुकुंद शुक्ला करेंगे।
भारत मंथन 2.0 की एक विशिष्टता ये है कि इस बार चारों किताबों के लेखक जो हैं वो इस विमर्श में शामिल हैं। पिछले बार ऐसा हुआ था कि सभी किताबों के लेखकों को हम नहीं बुला पाए थे अलग अलग कारणों की वजह से, पर इस बार चारों किताबों के लेखक इन किताबों पर विमर्श करेंगे। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मेरा आप सभी को अनुरोध है, विशेषतः ऑनलाइन मेहमान जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, कि सत्र खत्म होने के बाद नए सत्र का जो समय बताया जाए उस वक्त आप जरूर जुड़ जाएं, ताकि इस कार्यक्रम को हम अच्छे तरीके से समय पर शुरू कर सकें। मैं अब यहाँ स्टेज पर उपस्थित दो विदुषियों का परिचय आपको कराऊंगा। पहले डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अमीबेन का मैं परिचय आपको देना चाहूँगा। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अमीबेन उपाध्याय शिक्षण, संस्कृति एवं नेतृत्व का समन्वय है। अब गुजरात की इस प्रतिष्ठित ओपन यूनिवर्सिटी की एकमात्र महिला कुलपति है। तालियां हो जाए प्लीज। आपने अंग्रेजी विषय में एमफिल एवं पीएचडी प्राप्त की है। आपने भारतीय क्लासिकल नृत्य कथक के में विशारद एवं शिक्षा विशारद की उपाधि प्राप्त की है। आपने यूनिवर्सिटी स्तर पर महिलाओं, विद्यार्थियों और समाज के अंतिम छोर पर रहने वाले नागरिकों के लिए शिक्षण और बहुपरिमाणीय विकास के लिए अनेक लाभदायी निर्णय लिए हैं, जैसे कि राज्य सरकार की मदद से शहीदों की पत्नी और बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी के किसी भी पाठ्यक्रम में निःशुल्क शिक्षण, ट्रांसजेंडर्स, प्रोस्टिट्यूट्स, HIV पॉजिटिव पीड़ित व्यक्ति, दिव्यांगों को उच्च शिक्षा में मदद करने के लिए अत्रि स्पेशल लर्नर सपोर्ट सेंटर की भी स्थापना आपके द्वारा की गई है। आप विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ महिला एवं समाज कल्याण के कार्यों में निष्ठा से जुड़ी रही हैं। आप भारतीय विश्वविद्यालय संघ की गवर्निंग काउंसिल समेत अनेक सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों से विभिन्न पदों पर जुड़कर कार्यरत हैं। आप अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय सेमिनारों में रिसर्च पेपर के माध्यमों से सम्मिलित होती हैं। पुस्तक और संशोधन लेख के स्वरूप में आपके 50 पब्लिकेशंस हुए हैं। आपको बेस्ट वाइस चांसलर इन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग अवार्ड समेत कई प्रतिष्ठित राष्ट्रीय राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। आपके ही कैंपस में आपका स्वागत है अमीबेन। अब आज हम जिनका भारत सम्मान पुरस्कार से सम्मान करने वाले हैं, ऐसे विदुषी डॉक्टर नीरजा जी का आप लोगों को परिचय देना चाहूँगा। वैसे नीरजा जी का परिचय देने के लिए मैं काफ़ी जूनियर हूँ, पर चूंकि मुझे जिम्मेवारी दी गई है तो मैं ये करता हूँ, क्योंकि उनका व्यक्तित्व जो है और उन्होंने जो काम किया है वो उसका स्केल बहुत बड़ा है। आप वर्तमान में भारतीय विद्या भवन के शेठ RA कॉलेज PG आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज की प्राचार्य है एवं सेंटर ऑफ इंडिक स्टडीज स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम एवं डायस्पोरा रिसर्च सेंटर गुजरात यूनिवर्सिटी में आप निर्देशक हैं। आप भारत शोध संस्थान समेत कई महत्वपूर्ण सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों में विभिन्न पदों पर कार्यरत है, जिसमें भारत सरकार के गृह मंत्रालय के प्रोजेक्ट कश्मीर समेत और कई सारे महत्वपूर्ण कार्यों का समावेश है। आपको शिक्षा भारती पुरस्कार, अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रीय पुरस्कार, GOPIO गोपियो अवार्ड फॉर इंटरनेशनल सेव द प्लेनेट कैंपेन पेरिस समेत कई महत्वपूर्ण पुरस्कारों से नवाजा गया है। आपने वेटिकन सिटी में पोप द्वारा आयोजित क्रिश्चियनिटी और हिंदुइज्म पर किए गए इंटर रिलीजियस डायलॉग कमेटी में हिंदुइज्म का प्रतिनिधित्व किया है। आप अकादमिक तौर पर गुजरात यूनिवर्सिटी की सिंडिकेट मेंबर भी हैं। डॉक्टर अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी की गवर्निंग काउंसिल की आप सदस्य हैं। आप गुजरात यूनिवर्सिटी की 3 बार सेनेट मेंबर भी रह चुकी हैं। आपने इन विभिन्न पदों पर रहते हुए कनाडा, अमेरिका, इंडोनेशिया, जापान और नेपाल समेत 39 देशों का प्रवास किया है। आपके मार्गदर्शन में कई विद्यार्थियों ने अपनी PhD शोध निबंध तैयार किए हैं। आपके शोध पत्र विषय की जानी मानी यूनिवर्सिटियों, विश्व की जानी मानी यूनिवर्सिटियों में और रिसर्च जर्नल में प्रसिद्ध हुए हैं और हो रहे हैं। आप विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय यूनिवर्सिटियों एवं संस्थानों में एक्सपर्ट, सलाहकार, व्याख्याता,
परीक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हैं। आपकी हिंदी एवं अंग्रेजी में 17 किताबें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रकाशकों के द्वारा प्रकाशित की गई हैं। आप GOPIO की इंटरनेशनल एकेडमिक काउंसिल की 2 बार सदस्य रह चुकी हैं। आज ऐसी विदुषी का सम्मान करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आपका स्वागत है नीरजा जी। मैं अब श्री किशोर भाई मकवाणा को आग्रह करूंगा कि वो स्टेज पर आए और डॉक्टर अमीबेन उपाध्याय को मोमेंटो देकर उनको सम्मानित करें। हमने एक इन प्रिंसिपल पिछले साल ही निर्णय लिया था कि हम जो भी कार्यक्रम करेंगे भारत मंथन, उसमें हमेशा हम मोमेंटो के तौर पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की प्रतिकृति ही हमारे मेहमानों को अर्पण करेंगे। तो उसी सिलसिले को हमने इस बार भी आगे जारी रखा है। अब मैं डॉक्टर अमीबेन को अनुरोध करूंगा कि आप डॉक्टर नीरजा जी को सम्मान पत्र देकर उनका सम्मान करें। मैं 1-2 मिनट के लिए वहां जाकर उनका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की प्रतिकृति देकर सम्मान करूंगा। श्री अलकेश भाई को विनंती है कि आप नीरजा जी को शाल अर्पण करके उनको सम्मानित करें। मैं अब नीरजा जी से अनुरोध करूंगा कि आप अपना प्रतिभाव व्यक्त करें। हमारी नमस्कार। गीता जयंती के इस शुभ अवसर पर आज आयोजित भारत मंथन द्वारा NIMHCAJ द्वारा संयुक्त इस आयोजन में आदरणीय अमीबेन उपाध्याय, सत्र की अध्यक्षा, श्री अलकेश भाई, श्री काशिकर जी, किशोर भाई, आदरणीय नरेंद्र जी, उमंग भाई, भान भाई, आप सब के साथ आप सब परिवारजनों को मैं सादर नमस्ते करती हूँ और वंदन करती हूँ। आज इस अवसर पर यहाँ आना शायद भाग्य की बात है, क्योंकि हम लोग तो लेखक हैं, लेखन से बात करते हैं, लेकिन जब उसका अनुमोदन होता है तो लगता है शब्दों में बहुत सामर्थ्य होता है, और जो शब्दों का सामर्थ्य है वो सीधे सीधे कलम में नहीं आता, वो कहीं ना कहीं संस्कृति में होता ही है, तभी शब्दों तक आता है। और इसीलिए साहित्य को 3 भागों में बांटा गया है, एक तात्कालिक, एक सामयिक और एक कालजयी। सभी साहित्य सामयिक होते ही हैं, तात्कालिक होते ही हैं, लेकिन जो कालजयी होते हैं वही ग्रंथ बनते हैं।
और जो ग्रंथ बनते हैं उनमें हर समस्या का हल होता है। इसीलिए ग्रंथों का वाचन, पठन, मनन, चिंतन, लेखन बहुत आवश्यक है और उसी को साहित्य कहते हैं। आज हम जितनी भी समस्याओं से जूझ रहे हैं, चाहे पैंडेमिक की हो, वायरस की हो, हमारे लॉकडाउन की हो, पीछे मुड़ के देखते हैं तो ग्रंथों ने तो ये बात 5000 साल 6000 साल पहले कब की कर दी है। हमारा लॉकडाउन पांडवों का अज्ञातवास ही था, जब हमें पता ही नहीं हमारे अंदर क्या क्या और शक्तियां निहित हैं और हम उस अपने अनजाने पक्ष से अचानक दो चार होने लगते हैं और हमें पता चलता है कि नहीं, हमें अभी भी झाड़ू पोंछा लगाना आता है, घर में काम करना आता है, घर का हर सदस्य इस काम को कर सकता है। तो ग्रंथों ने तो ये कब का कह दिया कि अगर काम नहीं है, जरूरत नहीं है तो घर में बैठिए, घर में ही सुविधाएं हो जाएंगी। इसीलिए धृतराष्ट्र घर बैठ के महाभारत भी देखते हैं। बहुत सी बातों में आज हमें फिर से ग्रंथों तक जाने की आवश्यकता है। हमारा युवा बहुत से प्रश्न लेकर खड़ा है, हम उत्तर देने में विफल होते हैं क्योंकि हमारी पीढ़ी ने ग्रंथों तक जाना छोड़ दिया था। इसलिए एक छोटा सा बीड़ा उठाया हुआ है कि हर ग्रंथ को उस भाषा में लोगों तक पहुंचाया जाए जो उनकी भाषा है, जिसे हम लिंगो कहते हैं, द लिंगो ऑफ द यूथ। वी हैव टू कनेक्ट द यूथ विद द विजडम। भाषा कोई भी हो, ये आग्रह क्यों रखें कि संस्कृत ही पढ़नी है, पाली ही पढ़नी है, ब्राह्मी ही पढ़नी है। हमें जो भाषा भी आती है, जो हमारे यूथ को समझ में आती है, अगर हम उसको प्रश्नों के उत्तर देने लग जाएंगे तो कल को वो नए प्रश्न खड़े करके नए ग्रंथ लिख सकता है। कोई कारण होगा जो ग्रंथों का निर्माण बंद हो गया। हम सिर्फ पुरातन ग्रंथों की बात करते हैं। तो इस जो आपने अवसर आज मुझे दिया, उससे एक नया उत्साह, नई चुनौती और नया सामर्थ्य सामने रखने की प्रेरणा मिलती है कि हमने जो राह चुनी वो जरूरी है, आवश्यक है और सही है। इसी राह पे आगे चलते जाएं और अपने ग्रंथों की जो गरिमा है, आज सौभाग्य है कि गीता जयंती भी है और गीता जैसा सामर्थ्य किस ग्रंथ में होगा जो काव्य भी है, कूटनीति भी है, धर्मनीति भी है, राजनीति भी है और सहज नीति भी है। गीता नीति ग्रंथ है। तो इस अवसर पर आप सबको पुनः आज माननीय अटल जी को उनका स्मरण करते हुए क्रिसमस की आप सबको शुभेच्छाएं देते हुए और एक बार फिर आयोजकों को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने इस लायक समझा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। अब हम अपना इसी कार्यक्रम का जो दूसरा हिस्सा है उसमें आगे बढ़ते हैं। संयोजक श्री अल्केश भाई पटेल द्वारा संपादित पुस्तक पत्रकारित्व विश्वसनीयताનો પડકાર का आज हम यहाँ लोकार्पण करने जा रहे हैं। मंच पर उपस्थित निर्जाबेन, डॉक्टर अमीबेन और मैं परम आदरणीय नगेंद्र विजय जी से प्रार्थना करूंगा कि वो भी मंच पर आएं और इस पुस्तक विमोचन के कार्यक्रम में हमें अनुग्रहित करें। आइए। मैं श्री किशोर भाई को भी विनती करूंगा कि वो स्टेज पर पधारे। तालियां बजाने से रक्त संचार अच्छा होता है।
इस किताब की एक बेसिक जिस्ट मैं आपको दे देता हूँ। पत्रकारित्व के जो विभिन्न विषय हैं उनको लेकर अलग अलग लेखकों के द्वारा इसमें कंट्रीब्यूट किया गया है। इसमें श्री वीरेंद्र पंडित, श्री विष्णुभाई पंड्या, सौरभ शाह, विक्रम वकील, नीलेश रुपापरा, किशोर भाई मकवाणा, जपन पाठक, अलकेश भाई, कुलदीप लहरू, यशवंत रावल, रोहित शाह, सुदर्शन उपाध्याय, प्रकाश जावड़ेकर और मैंने भी छोटा सा प्रयास किया है। ये पुस्तक जो है ये 1 जनवरी से यह किताब अमेज़न समेत सभी मेजर प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हो जाएगी। अब मैं इस सत्र की अध्यक्षा डॉक्टर अमीबेन को अपना अध्यक्षीय उद्बोधन करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। नमस्कार। भारत मंथन इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के प्रांगण में आप सबका हृदयपूर्वक स्वागत है। इस कार्यक्रम के आयोजक अलकेश जी, शिरीष काशीकर जी, आज जिन्हें सम्मान भारत मंथन सम्मान दिया गया, ऐसे हमारे बोर्ड मेंबर डियर नीरजा जी, यहाँ उपस्थित अपने कार्य से जन जन में परिचित ऐसे नगेंद्र विजय जी, किशोर मकवाना जी, आज सोशल मीडिया से जुड़े सब को हृदयपूर्वक यहाँ स्वागत, नमस्कार। इस पुस्तक के लिए अलकेश जी हृदयपूर्वक अभिनंदन। जब शिरीष काशीकर जी बता रहे थे कि बाबा साहेब आम्बेडकर आपके संस्था में आपका आगमन, आपको मैं इनवाइट करता हूँ, वेलकम करता हूँ। हम तो इस देश से, राष्ट्र से हैं जहाँ कहा गया है सब भूमि गोपाल की। और दूसरी बात, किशोर मकवाना जी काफ़ी सालों से हमारे बोर्ड मेंबर रहे हैं और आम्बेडकर जी पे अध्ययन कर रहे हैं। मुझे लगता है उनसे ज़्यादा ऑथेंटिक पर्सन कोई नहीं है जो कह सके कि जिस संस्था का नाम आम्बेडकर से जुड़ा हो वो किसी एक व्यक्ति, एक संस्था या एक समुदाय का कभी नहीं हो सकता। वो संस्था सबके लिए होती है। भारत मंथन आज ये बहुत अद्भुत कार्य इसलिए है कि आप पुस्तक के साथ विचारों को बाहर ला रहे हैं। पुस्तक के पीछे विचार जो महत्वपूर्ण है उसकी बात करते हैं। लेखक, विचार, पुस्तक कितनी ताकत, सामर्थ्य अपने आप में रखता है, उसका भी एक ताज़ा उदाहरण हुआ। जब अलकेश जी मुझे परिचय करवा रहे थे, काशीकर जी और अलकेश जी, तो नगेंद्र विजय जी के बारे में सिर्फ इतना कहा, नगेंद्र विजय जी, आगे कुछ था ही नहीं और हमें कहीं ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अमी उपाध्याय, कुलपति, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी की ज़रूरत रहती है। और मुझे लगता है ये पहचान, नगेंद्र जी किशोर जी को बता रहे थे कि अच्छा आज पहली बार मिलना हुआ, आपको पढ़ा है, फिर वो सब बता रहे थे। मुझे डाउट है कि आज पहली बार मिलना हुआ। आपने मिले हैं, आप जब जब पुस्तक पढ़े, जब जब किशोर जी को पढ़ाए, तब तब आप उनसे मिले हैं। बस पुस्तक की ये ताकत होती है। भारत मंथन समुद्र मंथन होता है। समुद्र मंथन में देव दानव सब लगे। उस समुद्र मंथन से ही अमृत निकलना था। तो ये अमृत के लिए ये एक पूरी कार्यवाही है, पूरी ताकत लगानी है। आज जब मैं साहित्य के, बिकॉज मैं साहित्य की ही अध्यापक और विद्यार्थिनी रही हूँ, हम जब पढ़ते थे लाइफ फॉर आर्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ट एंड आर्ट फॉर द सेक ऑफ लाइफ आता था। एंड आर्ट फॉर द सेक ऑफ लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आई हैव बीन एसोसिएटेड विथ इंडियन क्लासिकल डांस ऑल्सो, कि जब आप किसी कला साहित्य से जुड़ते हैं तो समाज में कहीं परिवर्तन के परिवाहक बनते हैं।
तो वहां उस भूमिका से जब लेखक खुद जागरूक हो तब वो बाहर से कुछ अलग आके आता, परिणाम में कुछ अलग होता है। शशि देशपांडे जी को जब अवार्ड दिया गया तो उसे पूछा गया था कि आप अवार्ड, जब आपके अवार्ड के लिए आप किसको थैंकफुल रहेंगी, क्रेडिट किसको देंगी? उन्होंने कहा देयर वर सो मेनी पीपल हु रियली विश्ड दैट आई शुड गिव अप राइटिंग, लेकिन अंदर से जो आवाज आई कि छोड़ना नहीं है, आई विल नेवर गिव अप, आई थिंक द क्रेडिट गोज टू दैट स्पिरिट हु टोल्ड नॉट टू गिव अप, एंड आई थिंक हियर ऑल्सो द क्रेडिट गोज टू दैट। आज जब मैं पढ़ रही थी ये एन एंटायरली न्यू हिस्ट्री ऑफ इंडिया बाय फ्रांसवा गोतिये, हिस्ट्री न्यू कैसे हो सकता है? मैं इसलिए ये सारे पुस्तकों को लेके एक टाइटल के बारे में मैं बता रही हूं। हिस्ट्री इज नेवर न्यू, बट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी टॉक्स अबाउट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन। रोला बार्थिस जब लिखते हैं रीडर्स रिस्पॉन्स थियोरी, it is very important how it reaches to the reader, the piece of literature, साहित्य की एक कृति है वो लोग तक कैसे पहुंचती है और उसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है, क्योंकि जब इंटरप्रिटेशन होता है तब सही मायने में वो पहुंचती है। लेखक के मन में जो होता है और अगर इंटरप्रिटेशन कहीं अलग हो गया तो वो कृति या लेखक पहुंचे ही नहीं है। तो लेखक को अपने सही मायने में, सही स्पिरिट में लोगों तक पहुंचाने का काम इस भारत मंथन कर रहे हैं। और मुझे लगता है, मैं जब सोच रही थी कि एन एंटायरली न्यू हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत की सबसे पुरानी संस्कृति, संस्कार, परंपरा, और वो हिस्ट्री न्यू कैसे, और वो भी फ्रांसवा गोतिये। फिर मैंने सोचा कि हमारे भारत में कहते हैं कि ढूंढने से ईश्वर भी मिलते हैं, तो लगता है गोतिये है तो उन्होंने गोत लिया। गुजराती में આપણે કહીએ કે ગોતી લીધું એમણે। હકીકતમાં આ ગોતવાની એક યાત્રા છે, ગોતવું એક યાત્રા છે। When we were child, काफी लोग जब बोलते हैं necessity is the mother of invention, I very humbly disagree. It's curiosity and creativity. They are the two mothers of invention. जैसे कृष्ण को देवकी और यशोदा थे, ऐसे क्रिएटिविटी और क्यूरियोसिटी, हमें क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। मैंने काफी साथ देखा है, सब छोटे बच्चों से मैं मिलती हूँ, मेरी बेटी यूथ है। नीरजा जी ने एक बहुत अद्भुत बात की, मैं आई अग्री, हम कंप्लीटली अग्री, कि भाषा और शब्दों को ना पकड़े, स्पिरिट को पकड़े। और पता नहीं, मुझे लगता है आज के यूथ में ओपननेस काफी है, उन्हें चाहिए। हम कहीं उस स्पिरिट में देने से चूक रहे हैं। आज ये पुस्तक इतने सारे सोशल मीडिया से काफी लोग जुड़े हैं आज हमसे, तो जो भी, आई एम श्योर कि दैट दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम विल एनकरेज देम टू रीड दीज बुक्स, नॉट ओनली दैट but would encourage to produce something related to the ideology of the book. I really congratulate भारत मंथन और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी हमेशा से ही ऐसे राष्ट्र निर्माण के कार्य में हमेशा से जुड़ी है। हम काफी ऐसे इनिशिएटिव ले रहे हैं जो हम अंतिम व्यक्ति, समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके। तो मैं आपसे आज सबसे अनुरोध करूंगी कि आपके मन में कहीं भी कुछ ऐसा आता है कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर यूनिवर्सिटी ये कर पाएगी, तो हमेशा से हम इसके लिए उत्कृष्ट है, हम तैयार है। इस प्रांगण में आपका स्वागत, आम्बेडकर जी के विचार और जीवन में आपका स्वागत, और समष्टि तक पहुंचने के हमारे जो संकल्प हैं उनमें भी आपका स्वागत है। आभार।